Very good morning, my dear children of class 10th. Here I am with the topic Modern Forms of Money of your chapter number 3, Money and Credit of Economics, and I am Poonam Prasad. Today's topic is quite important as we have started our journey from the definition of money, the need of the money. Fine. Crowther's definition we have learnt about. Then we came across with the barter system, its meaning and with its demerits. Then we came across with the evolution of money. Then the good features of the good money. Then we came across with a very important topic, and that is your evolution of that is your functions of money. We have learned the three functions: primary, secondary and contingent functions of money. Students, today's topic is quite important according to your examination point of view also. So let's we talk on this topic. Students, what is exactly the money? As we have already seen that money is a medium of exchange in the terms of transaction. It is a medium of exchange, fine. But if we are talking in the earlier days, we have already gone through with that. In our earlier days, the cattle and grain were used as a money. Then comes to metallic coins. Metallic coins, it is gold, silver and copper. But that then came as a use of in the modern form of money. It includes a currency beta. Fine. Indians now, if we are talking about the Indians used grains and cattle as their money. Then comes to metallic, as I have already told you here, the gold, silver, copper. And now it comes to the modern form of money. Modern form of money is include what your currency. हम लोग बात करते हैं ना currency. Currency of India is rupee. Currency of Bangladesh is taka, right? So we are talking about the currency. Currency as a GK के लिए आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी होना चाहिए बेटा. You people should know about the currencies of different countries. So what does currency meant about? Currency meant about the paper notes and coins, children. It meant about the paper notes and coins. So modern currency, children, just remember it, that modern currency is not made up of your gold, silver and copper, and it is not even included the grain and cattle. Fine. Like in earlier days, we had it is considered as a medium of transaction, like grain, cattle, silver, copper, precious stones. They were considered as a currency, but in the modern currency it is not about that. Fine. But remember it, that modern currency is without any use of its own. This is a very, very important. The modern currency is without any use of its own. Just remember a day of demonetization, जब 500 और 1000 को बैन लगाने से पहले, लीगलाइज उनको ख़त्म करने से पहले, जब वो दोनों नोट 500 and 1000 was considered as a greatest denomination of money जो था हमारी कंट्री का, हमारी करेंसी का, उन दोनों को बंद करने से पहले उनका प्रचलन पूरे भारतवर्ष में हर हिस्से में होता था, उनका सर्कुलेशन. Is that clear? It was highly acceptable in Indian society, circulated or moved freely from persons to person, और वो transaction में वो 500 and 1000 rupees were used बेटा. ठीक है. लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि a plain paper can be used as a currency. कैसे? जब
उस इफ एक क्वेश्चन आता है बेटा, इफ अ मॉडर्न करेंसी इज विदाउट इट्स ओन यूज, देन व्हाई it is acceptable, then why it is acceptable as a medium of exchange? अगर उस करेंसी का अपना ही कोई यूज़ नहीं है तो हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपके इस आंसर में होगा. Students, kindly listen to this particular paragraph. This particular paragraph is quite important and kindly go through with this paragraph. Fine, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. If the currency, modern currency is not without any use of its own, then why it is accepted as a medium of exchange? Children, it is accepted as a medium of exchange because this currency is authorized by the government of the country and authorized by the government of a country. In India, if we are talking about Indian perspective, Reserve Bank of India, RBI, only the agency behind the issuing of currency note on behalf of the government. Children, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको पूरी पूरी अथॉरिटी है टू सर्कुलेट, टू इशू द नोट्स बेटा. इनके अलावा आरबीआई के अलावा कोई भी अदर एजेंसीज, इंडिविजुअल या अदर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अलाउड. No other agencies, individual or any other organization is allowed to issue currency. Is that clear? That is why it is legally acceptable in India. अगर हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है, वो 100 रुपीज़ अगर उसका सर्कुलेशन आरबीआई ने बंद कर दिया तो उस 100 रुपीज़ का चलन पूरे भारतवर्ष में ख़त्म हो जाएगा. आप लोगों ने सुना होगा 25 पैसा पहले चलता था, उसको बंद कर दिया गया. 50 पैसा भी बंद कर दिया गया है. 1 रुपी को भी उसके भी कुछ ऐसे कॉइन्स आए जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थे, है ना. फिर जो 500 का पहले नोट चलता था वो नहीं है. 1000 का डिनोमिनेशन वो सर्कुलेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो डीमोनेटाइजेशन से पहले जो 1000 और 500 के नोट इतना फ्रीली सर्कुलेट होते थे, इट वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने उसका सर्कुलेशन कर दिया बंद. इसके वजह से वो सोसाइटी में क्या हुआ, वो उसका जो चलन था जिसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं वो ख़त्म हो गया. इज दैट क्लियर? So in our country, who is the Central Bank of India to issued? Your Reserve Bank of India. Fine. And as per the Indian law, no other individual, organization or any other agency is allowed to issue currency. Fine. Beta, the law legalizes what is the currency of India. Can anybody tell me? Yes, true. Rupee is a currency of India. एक लॉ, कानून के तहत द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग द ट्रांजैक्शंस इन इंडिया. इट मीन्स दैट no individual in India can legally refuse a payment made in rupees. कोई भी, अगर डॉलर आए और डॉलर को आप बाहर से आए, आपने डॉलर को सोचा कि हम भारत की सोसाइटी में उसको यूज़ कर लेंगे, सर्कुलेट कर लेंगे, तो बेटा गलत है. ऑल्दो डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, लेकिन डॉलर जैसे ही एयरपोर्ट पे आएगा वैसे ही कोई भी व्यक्ति को डॉलर की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में?
इंडियन रुपी में। यही तभी एयरपोर्ट के आसपास आपको बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं, एजेंसीज़ मिलती हैं। तो वो लोग क्या करती हैं, वो लोग जितने डॉलर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इंडियन रुपी में। और वो व्यक्ति चाहे वो अमेरिकन टूरिस्ट ही क्यों ना हो, वो भारत में आएगा और भारत के पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए वो एयरपोर्ट में क्या करेगा, वो उसको एक्सचेंज करेगा। फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, फॉरेन मनी एक्सचेंज। तो फॉरेन मनी एक्सचेंज में वो अपना डॉलर लेकर आएगा और यहाँ पे इंडिया के रुपी के साथ उसको कन्वर्ट कर देगा और वो पूरी तरह से इंडिया में जितने दिन है वो घूमेगा और जब उसको जाना पड़ेगा अगेन वो कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपी को इनटू द डॉलर्स। इज दैट क्लियर बेटा? तो कोई भी व्यक्ति रुपी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ये लीगली law is legalized to use the rupee as a medium of exchange. Thus, beta, the money is highly acceptable as a medium of exchange. Is that clear, children? Fine. We have the next. Students, the next topic is deposits with bank. Now here it comes as a banking system. इस particular topic में we are going to deal with the banking system. Students, हम लोग बैंकिंग सिस्टम को जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बेटा, हम लोग गुल्लक में पैसा जमा करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, हम जितने साल भी गुल्लक में पैसा जमा करें, जब हम गुल्लक को फोड़ते हैं तो वो गुल्लक हमें, या हमने घर के किसी कमरे में या सेफ में रख दिया पैसा, वो पैसा हमें कभी बढ़कर नहीं मिलता है। उस पैसे में कभी कोई इंक्रीज़ या इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देता है ना? इज़ दैट क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई वांट टू और व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट दिस बैंकिंग सिस्टम। अब एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मैन और अ वर्कर हु रिसीव हिज सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के एंड में उनको सैलरी मिली, मुझे भी सैलरी मिली, है ना? मैंने अपने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर जो था, मैंने अपना पूरे घर का खर्चा तय कर लिया और तय करने के बाद जो मुझे लगा कि ये कुछ अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट को मैं घर के किसी सेफ में रखूं तो हो सकता है वो चोरी हो जाए, हो सकता है वो मुझे प्रॉफिट ना दे सके। मैंने उस एक्स्ट्रा पैसे को लिया और ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो आई डिपॉजिटेड द अमाउंट with the bank by opening a bank account in my name. बेटा, I would like to open a bank in my name. मैं अपने नाम से अकाउंट खुलवाऊंगी, जैसे UBI जो स्कूल में है हम लोगों का, उसके अकाउंट मैंने वो बैंक में मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और मैंने जो सैलरी आई उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा उठा के बैंक में जमा कर दिया। बैंक एक्सेप्ट दिस डिपॉजिट। बेटा, बट मेरे को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए मुझे उस बैंक का अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी होगा, याद रखेगा बेटा। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे। बैंक से क्या मिला बेटा? बैंक ने उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया और हर महीने में कुछ अमाउंट ऑफ मनी ऐड करके दिया, जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट एज एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, है ना? आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट है, सिंपल अमाउंट, ये इंटरेस्ट रेट और ये सब इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, है ना बेटा? सो बैंक जो भी मैंने डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया और बेटा उसमें उसने इंटरेस्ट जोड़कर मुझे लास्ट में
चाहे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में मुझे उसने इंटरेस्ट दिया। बेटा यही पैसा अगर मैं गुल्लक में जमा करती तो मुझे वो पैसा नहीं मिलता, मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। इस तरीके से मेरा पैसा भी सेव हुआ बैंक में और मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी जमा कर लिया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा कैश, फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा पेमेंट, जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। therefore the people, they deposited their extra money with bank, फाइन। और अगर मैंने जमा किया है तो बेटा मैं निकाल भी सकती हूँ, है ना। तो जमा किए हुए को मैंने क्या किया, डिपॉजिट, निकालने को मैंने क्या कहा, विदड्रॉ। So people also have the provision to withdraw the money as when they require, whenever I am in a need. मैं ऐसा नहीं कि मैंने जमा किया तो मुझे कोई निकालने नहीं देगा, नहीं बेटा, मैंने जमा किया और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस पैसे को निकाल भी सकती हूँ। So since the deposit amount is in the bank account and it can be withdrawn on the demand, then this is called as, this type of deposits are called as demand deposit, beta. Is that clear? Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called as demand deposit. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, demand deposit. Is that clear? बहुत बार क्वेश्चन आया है, what do you mean by demand deposit and why it is important? Students, sometimes demand deposits एक facilities provide करता है, which is the important or essential characteristics of money. Thus it is called as the medium of exchange. It means we are depositing, we are withdrawing the money. तो ये एक तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स या कभी कभी आपके पिताजी देते हैं आपके फीस विद द हेल्प ऑफ चेक, है ना, है ना बेटा, क्या देते बेटा, विद द चेक। So sometimes the payment being made by the checks instead of cash. So let's we have in this about the check payments. What is a check बेटा? चेक क्या है बेटा? एक चेक इज़ अ मीडियम, सबसे पहले तो ये मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैश। सो इट इज़ अ चेक, एक पेपर है बेटा, दिस इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, ये इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन जिसका अकाउंट है किसमें, बैंक में, टू अ पर्सन जिसका नाम चेक में दिया गया है। जैसे यूबीआई में मेरा अकाउंट है और मैडम सरिता को चाहिए अमाउंट 5000 रुपीज़, ठीक है, मैंने उनके नाम का 5000 का चेक काटा, इट मीन्स 5000 का चेक बनाया। सो इसके लिए ज़रूरत क्या थी, पहली चीज़ मेरे को यूबीआई का अकाउंट होल्डर होना, और दूसरा उस चेक पे डेट के साथ साथ टू whom आई एम गोइंग टू पे, टू मैडम सरिता, सरिता मैडम का पूरा नाम, मुझे रुपीस देना पड़ेगा। मैं आपको फर्दर स्लाइड में दिखाऊंगी अबाउट द चेक पेमेंट। सो स्टूडेंट, फॉर द पेमेंट थ्रू द चेक, पेयर का अकाउंट होना चाहिए इन द बैंक, दस इट मेक अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, मुझे उसमें अमाउंट को भरना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? मुझे अमाउंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, भरना पड़ेगा।
दिस इज़ अबाउट अ चेक पेमेंट। इसको आप लोग अच्छी तरीके से जूम करके देखिएगा। जैसे एक शू मेकर है मिस्टर सलीम, उन्होंने पेमेंट बनाया लेदर सप्लाई, और जो उन्होंने नाम लिखा, write a check for a specific amount, the amount is rupees 57,000. This means that the shoe manufacturer instruct his bank to pay this amount to the leather supply. जो मिस्टर सलीम है उन्होंने क्या दिया, इंस्ट्रक्ट किया बैंक को टू पे 57,000 रुपीज़ टू whom? टू मिस्टर प्रेम कुमार. The leather supply take his check, deposit in his own account in the bank. अब मिस्टर प्रेम कुमार ज़रूरी नहीं कि वो यूबीआई में ही हों, उनका अकाउंट सेम अकाउंट उसी बैंक में जिस अकाउंट में मिस्टर सलीम का है, नहीं बेटा, वहाँ पे वो किसी और बैंक में जाएंगे, उनका जो अपना अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो आईसीआईसीआई में हो, चाहे वो एचडीएफसी में हो, वो उस चेक को ले जाएंगे, जो चेक किनके द्वारा दिया गया, मिस्टर सलीम के द्वारा, और ले जाके वो अपने अकाउंट में जमा कर देंगे। दस द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन 2 or 3 days। अभी तो काफ़ी ज़्यादा, अभी काफ़ी जल्दी हो जाता है ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश बेटा। तो यहाँ पे विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हुआ बेटा। बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स, हाई अमाउंट ऑफ पेमेंट्स चेक के द्वारा ही होते हैं, ठीक। दस वी कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ द चेक। लेट्स ऑन कंक्लूडिंग पॉइंट, स्टूडेंट्स, द डिमांड डिपॉजिट, it is a very much essential feature of money. Payment through check is settling down the payments without any use of cash. It is quite, हम लोग ट्रैवल करते समय कैश ले जाते हैं, वो थोड़ा सा हानिकारक होता है समटाइम्स। तो हम लोग अगर चेक अपने साथ रखते हैं तो हम लोग बिजनेसेस या ट्रेडिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। Children, since demand deposits are accepted widely as a mean of payment, thus we can say along with the currency they constitute who? The means of payment, that is the check, or you can say the demand payments and all. It is considered as a modern form of, along with the currency, it is constitute in the modern economy of a country. इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है बेटा। तो आपकी आज की क्लास में कंप्लीट हुआ ये स्पेसिफिक। कल हम लोग पढ़ेंगे, एक कॉन्टिन्यूएशन होगा बैंकिंग सिस्टम पे, ठीक है बेटा। टिल देन यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड you have to go through with the notes that I am going to provide you. Fine. Thank you children and goodbye.